की मदह में क्या कुरान कह रहा है, यासीन और तौहा कुरान कह रहा है। तख्लीक के अव्वली है खालिक की ओर देखो, तख्लीक के अव्वली है खालिक की ओर देखो। खत्मे रसूल है आका कुरान कह रहा है। सरकार ने जो देखा हक को भी किस अदा से, सरकार ने जो देखा हक को भी किस अदा से। माज़ाक का ये किस्सा कुरान कह रहा है। शम्सुद्दुहा वो चेहरा बदरुद्दुजा वो जुल्फे, शम्सुद्दुहा वो चेहरा बदरुद्दुजा वो जुल्फे। सरकार का सरापा कुरान कह रहा है। मांगी खलील ने जो आका तुम्हारी खातिर, हो अक्स उस दुआ का कुरान कह रहा है। इस नात पर अवैस अब हो क्यों ना शुक्र लब पर, इस नात पर अवैस अब हो क्यों ना शुक्र लब पर। सरकार का कसीदा कुरान कह रहा है। बहुत शुक्रिया। Use good character, especially law colleges. They empower students to become the agent of change because they teach students about the legal system of country, a system that has the seed of change built into its structure. I choose to go to law college because I thought someday, somehow, I would make a difference in the society. For our next industry performance, I would like to call Dinesh Puneet, logistic in charge of CESL. Please Dinesh, come on stage. This is me, Dinesh Puneet Ali, and it's almost my second year in CESL as a member. And I would at first really thank Dr. Sangha Fatima that she gave me a chance to come here and speak. And it's not any, written speech that I'm given and I have to speak everything in goodwill of that. That's basically a student's perspective and I'm standing here to speak about that. So I'll let you know a little bit of background of CESL. CESL was established in 2017 by Dr. Tahir Amin, who is the ex-Vice Chancellor of the And now we have our veteran in charge, or who we can call a special honor. She's also our current HOD, and as well as she's associate professor. And it's really an honor to have her here. She has done her PhD from UK in government, corporate governance. Sorry. Okay. So today, the topic that I'm going to present is that what, as a student, is my perspective on how GLC was in the past and how it is today, now, in the present movement. And some people really ask the question that, okay, you're a CESL member, what do you do in CESL? I've never seen anything that you do in the CESL. So this is an answer to those people, and now we're sitting here, they can tell to the other persons that CESL plays a very vital role in the co-curricular activities, extracurricular activities. For example, we really organize seminars, conferences, and workshops. And on the other hand, in extracurricular activities, we really have very two successful
like No Backpack Day and first ever convocation, we can say is the graduation ceremony. It was done first time ever in the GLT, and they were both fabulous and fantastic. And we really thank Dr. Samza Fatima that she really supports us in these creative ideas, and she let us do all these things. So first of all, today I'll show. So this was the condition of GLC in the past, and now let's look how it is in the present.
one thing that I want to say is that actions do speak louder than the words. And if I just describe them in the words, that would be very less. And this is shown it to you. ये तो सारी चीज़ें थी जो हमें बिल्डिंग के हवाले से नजर आई, जैसे कि अब कोई पोस्टर्स नहीं है, पेंट वेल है, हमारी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर न्यू एडिशन है बुक्स की, काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं जिससे बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हैं इसके अंदर. एंड वी रियली वंस अगेन थैंक्स टू द होल स्टाफ. एक्चुअली जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं वो भी, और उनके हमारे जो प्रिंसिपल हैं करंट, वो भी, दे ऑल टुगेदर एज अ टीम एज अ फैमिली प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन इट. उसके साथ साथ हमारी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है. दैट वी हैव टू टेक द रेगुलर लेक्चर्स, जो कि पहले नहीं होता था. एंड देयर इज अ स्ट्रिक्टनेस ऑफ द यूनिफॉर्म दैट वी wear, and you guys can see it कि हम आज यूनिफॉर्म में आए हुए हैं. And there are other many things that are happening in our life, and change is basically very important. एक कहावत है कि अगर पानी भी कहीं खड़ा रहे ना ज़्यादा देर तो उससे भी बदबू आने लग जाती है, इसीलिए उसमें लहरें होती हैं, उसमें फ्लो होता है. And that's the thing, that change is very important. And if the change LLB 5 years, in past there was LLB 3 years as well, now LLB 5 years. LLM, and it's also an absolute honor that first ever South Punjab Institute, which is offering PhD program in the history of government institute in South Punjab. That credit also goes to University Gilani Law College, Bahudin Zikriya. Come to the next page. BM statement of Dr. Mansoor Ahmed Saab. And I still remember we were having interview with Dr. Saab, and they said nations are built and destroyed in classrooms. And really, nations are built and destroyed in the classrooms. All of you today, you have spared your precious time for us. Basically, आज यहाँ जमा होने के दो मकसद हैं जो कि मैं बयान करूँगी. एक तो हमने लॉन्च करना था अपना फर्स्ट एवर न्यूज़ लेटर, जो कि पहले कभी लॉ कॉलेज में नहीं लॉन्च किया गया, और मैंने VZU में भी लॉन्च होता हुआ नहीं देखा. न्यूज़ लेटर लॉन्च करने की रिवायत नहीं है, जो कि अक्सर इंस्टीट्यूशंस करते हैं. एंड द पीपल हु वर्क इन यूनाइटेड नेशंस से नो वेरी वेल कि यूनाइटेड नेशंस में काम करने वालों को ये सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी इदारे के साथ काम करें, एनुअल रिपोर्ट पेश करें कि आपने एनुअली वहाँ पे क्या काम किया है. और जब आप चार्ज लें किसी पोस्ट का और चार्ज छोड़ें, तो आप एक रिपोर्ट बना के जाएं अपने आने वालों के लिए, जिनको पता चले ये काम आपने किए हैं, और वो आपके कामों को आगे फर्दर लेके चलें और उनके अंदर ऐड करते जाएं. तो ये कोशिश थी हमारे सेंटर फॉर एमिनेंट स्टडीज इन लॉ के स्टूडेंट्स की, जो कि इनकी इसमें आपको गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ ज़रूर नज़र आती होंगी, लेकिन मेरे लिए ये इंतहाई अप्रिशिएटेबल इसलिए भी है कि ये प्योर स्टूडेंट्स की मेहनत है. मेरे पास इस टाइम पे कोई प्रोफेशनल स्टाफ नहीं, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोफेशनल ITs के लोग बैठे होते हैं जो कि इन सबको बनाते हैं. ये प्योर स्टूडेंट्स ने इसको कंपाइल करेंगे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब, सर काइंडली आप तशरीफ लाएं, इन सब से ओथ लें और अपने कुछ वर्ड्स कहें. एक चीज जो कि मैं मेंशन करना चाहूँ, जब मैं इस लॉ कॉलेज में आई थी 2010 में, तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और शायद मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी. मैं वो लगाया हुआ पौधा हूँ. मेरे साथ मेरे दो और फैकल्टी मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसका क्रेडिट जाता है जस्टिस खालिद अलवी साहब को. इनके वर्ड्स जो हैं वो मुझे हमेशा याद रहते हैं. दो स्टेटमेंट्स मैं हमेशा इनकी याद रखती हूँ. एक तो इन्होंने कहा कि इनको इंग्लैंड जाने से पहले लॉ कॉलेज ले आओ, ताकि इनका एक ताल्लुक कायम हो जाए जो इनको वापस लेके आएगा, इनको उधर रोकेगा नहीं. और दूसरी ये स्टेटमेंट बोला करते थे, रास्ता दे दो रास्ता मिलेगा, रास्ता रोकोगे तो रास्ता रुकेगा. एंड वी 100% और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी नाकामी का सामना नहीं हुआ. और मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट थैंकफुल हूँ जस्टिस जफर यासीन साहब का. इनकी पैट्रोनेज, इनकी गाइडेंस, बोर्ड ऑफ स्टडीज का कोई मामला हो, हमारी किसी और लॉ कॉलेज कमेटी की मीटिंग का कोई मामला हो, कोई भी और चीज़ हो, जिस तरह से ये गाइड करते हैं और अपने जुडिशियस माइंड से हमें सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं, हमारा सफर बहुत आसान हो जाता है. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू. आई रिक्वेस्ट नाउ
Deputy Vice Chancellor Professor Dr. Mansoor Akbar Puri साहब सर काइंडली तशरीफ लाइए और वोट कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. I have been selected as of the Center for Eminent Studies in Law 2022-2023 of the University Law College. I solemnly swear to fulfill my duties and obligations in my full capacity with integrity and honesty, sincerity, humility, and commitment as I shall promise to follow the rules and regulations of Center for Eminent Studies in Law and University. With this I ask the help of Allah Almighty. Grant me the grace to strengthen and inspire. Allah bless you all. During Second World War, Winston Churchill, who was the Prime Minister of England, was visited by Lord Carrington, the Chancellor. And this was the time when Europe was plunged into war, chaos, anarchy, or whatever you call it, but at least absolute destruction between Nazis and Allied. मैंने बुलाया तो मैं छोटा सा अपना जाती वाकया बता देता हूँ। ये 1982 की बात है। हाई कोर्ट को बेंच एस्टैब्लिश हुए भी 1 साल का था। तो मेरे पास चंद गिनती के केसेस होते थे और कोई काम नहीं था। उन्हीं केसों को रटी जाना, बार बार पढ़ी जाना। तो एक केस मेरा एक दिन में एक लगा हुआ था। कभी हफ्ते में एक केस होता था, कभी 2 हो जाते थे। इतनी मसरूफियत थी। तो केस कंडक्ट करके तो बाहर निकला तो जो नायब पर्सन था वो आया कि जज साहब ने आपको ब्रेक में बुलाया। अब मेरी तो टांगे कांपे, तो पता नहीं क्या गलती कर दी। मैंने तो सीने में शराब खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। ब्रेक हुई, अंदर गया, वो फाइलें साइन कर रहे थे। तो बारे हुए साड़ उठाया, हाँ बैठ गया। थोड़ा सा हौसला हुआ, फिर बैठने को जो कह दिया वो गलती छोटी होगी। फिर साइन करके वो चपरासी होकर चाय ले गया। वापस होने वाला हो गया, चाय आ गई। फिर काम खत्म करके बैठ के चाय आ गई। हाँ भाई, तुम्हारा नाम खालिद अलवी है। वेरी गुड, I am impressed with your preparation and presentation. Very good. Keep it up. One day you will be sitting on this chair. मेरी उम्र उस वक्त 30 साल और एलिवेशन की मिनिमम एज 45 और प्रैक्टिस मेरी ना होने के बराबर। मतलब तसव्वुर से बाहर की बात जो उन्होंने कही। मैंने वो बहुत गुजर दिया। In 2001, second May को, first May को छुट्टी होती है, second May को हमारा oath हुआ। And after the oath, the Honorable Chief Justice Palak Sher Sahab asked me to go and join your duty at Multan. It was the same chair, same courtroom, and my first day. तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें, काम थोड़ा हो ज्यादा हो, डेफिनेटली
आप अपने काम को दिल जमई से करें, सिर्फ मेहनत करें अपनी। आज आप सोच भी नहीं सकते कि भाई आप में से कौन क्या होगा, क्या फ्यूचर है, लेकिन जिस लाइन को पकड़ें उस लाइन पे दिल जमई से चलते रहें और नेक नियति के साथ। ये दो शर्तें हैं, मेहनत और नेक नियति। अल्लाह ने कामयाबी दी। थैंक यू वेरी मच। इस लॉ कॉलेज की, गिलानी लॉ कॉलेज, जब ये इसका अपना कोई मुकाम नहीं था, कोई जगह नहीं थी, ये गिलानियों ने चीफ जस्टिस भी रहे। उनके बाद वो ऑफिस संभाला चौधरी आरिफ साहब ने, जो हमारे भी उस्ताद थे डॉक्टर। फिर वो जज बन गए। फिर वो दफ्तर संभाला जस्टिस अफर यासीन साहब ने, ये जज बन गए। फिर वो दफ्तर संभाला मैंने, फिर मैं जज बन गया। फिर वो दफ्तर संभाला अमीनुद्दीन खान साहब ने, अब उस सुप्रीम कोर्ट में बैठे। ये